सी इनएविटेबल तो कुछ नहीं होता। रास्ते रास्ते निकाले जा सकते हैं। मेजॉरिटी क्या है उस बारे में अगर हम बात करें तो इट इज अ टू वे स्ट्रीट। इट इज एक्चुअली अ डबल एजेड स्वॉर्ड। Mediocrity has crept in because of volume, as I said, also because of our understanding of how or what revenue these particular mediums that we spoke of generate. They're businesses today. There are major conglomerates handling the businesses or different segments of entertainment that we are talking about. But by the end of it, there is something called integrity, which cannot be measured, which cannot be compromised upon. That also depends on one's own worldview, one's own value system. The absolute deterioration of journalism is synonymous with the fact, or is symbolic of the fact, that it is business. All the news channels today, they are competing with each other, not with regards to their reportage, but with their ratings. Everyone claims to be number one. इसीलिए आज शायद आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा। जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही मिस इन्फॉर्मेशन भी है। अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो इट इज अ मैसिव इंडस्ट्री, रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री है। नाउ व्हाई आई कॉल इट अ डबल एजेड स्वॉर्ड, and I do not blame those sensational news channels either, is because people want to see it. There is a demand for it. Demand और supply का simple law है. But here we are talking about integrity. Why do we talk about integrity through this film, and especially the unfortunate incident of the Sabarmati Express, is when we recognize the media as the fourth pillar of a healthy democracy, one has to look, and also with the advantage of hindsight, you can look back and understand or probably analyze, did they do their duty rightfully at a time when the country needed them the most? Or are they continuing to do that today when an average common man wakes up in the morning or returns home at night after a long, arduous day? Are they actually doing the duty that is expected of them from a common man? So, this is what we want you to think about, or probably observe and ask your own self. अच्छी बात है यार, सेंसेशनलिज्म अगर आपको पसंद है आप देखें, बट इवन एज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सोसाइटी आपका योगदान जो है ना वो लार्जर एस्पेक्ट में काम आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर की चार दीवारों में क्या करते हैं उसका समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपकी गलत मानसिकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है। घर से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से देश, देश से दुनिया बनती है ना। तो मेरा ये मानना है। See, we cannot speak about someone else because we have absolutely no knowledge. Speaking about Sabarmati Report, whatever little information that I have, or we have rather, is that the film has so far not been asked to have any major cuts in the film. The Honorable CBFC has already seen the film. There are certain recommendations which are very generic, which is a general procedure. Now, how the audiences will react to it is something which I cannot preempt. Right? We've made a film with absolute honesty, with intent and facts and research. But having said that, the complex world that we live in, my reality could be your propaganda. So I would like to leave it there. I do not want to come out there and try to change your worldview because, firstly, I can only hope that it changes, but I'm not going to push it upon you. Here we have spoken about absolute facts backed by the judgments and reports of the Honorable Supreme Court. That's it. As in, of course, there's a difference in the technology we have today and the technology we had in those times. But it's amazing to know, you'll notice one thing, that even in those times, with not as much technological advancement, the facts were twisted.
अभी तो वैसे भी बहुत सारी आवाजें हैं which you'll see on social media. There are so many people saying so many things on one particular news article or whatever that event that happens. तो आप वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर भी ये पूरा इंसिडेंट इतना, अगर आप कुछ भी खोलेंगे इसके बारे में, अगर आप गूगल करेंगे या देखेंगे, तो बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं इस इंसिडेंट के बारे में. तो आई वाज अमेज्ड कि उस टाइम ना इतनी एडवांसमेंट ना होने के बावजूद भी, तो ऐसा नहीं है कि आप फोन उठा के यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग थिंग्स, वो सब नहीं था उस टाइम. ये सब ना होने के बावजूद भी इतने सारे फैक्ट्स ट्विस्ट किए गए. सो ऑफ कोर्स उस टाइम आई थिंक इट वाज प्रोबेबली अ बेटर टाइम, बिकॉज आजकल तो पता ही नहीं चलता, कोई भरोसा ही नहीं है किसी न्यूज के पीस पे कुछ आएगा, आप उस पर भरोसा ही नहीं कर पाते. यू विल हैव टू डू योर ओन फैक्ट चेकिंग. उस रिसर्च का भी आप रिसर्च करते हो इफ यू रियली वांट टू डिग इनटू द ट्रूथ. आधे से ज्यादा लोग इग्नोरेंट बन जाते हैं. बट उस टाइम मीडिया बहुत पावरफुल थी. आप सुनते थे कि जैसे रिद्धि ने कहा कि आप सुनते थे कि जो न्यूज एंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं. तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उस टाइम इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और इतना कुछ ट्विस्ट कर दिया गया. So these are the differences that I saw in today's time. It's easier to make it, with all the gadgets that we have, it's easier to access information. उस टाइम पर भी, उस टाइम पर इतना नहीं था, फिर भी ये इतना ट्विस्ट हुआ. इसीलिए ये फिल्म इतनी जरूरी है कि आप जाकर देखें. नहीं, ऐसे तो नहीं सोचते कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है तो पहले मतलब यू जस्ट गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी एंड बिकॉज ये एक सच्ची कहानी है, एक दुर्घटना है जो हुई है हमारे देश में, तो बस उसी को दर्शाना था अच्छे से, सो आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन टू दैट एंड फॉलोड द डायरेक्टर, फॉलोड जो राइटिंग थी, जो रिसर्च थी. मैंने खुद भी बहुत सारी रिसर्च की. लकीली आई हैड मेरे मेरे पास था, आई हैड एक्सेस टू पीपल जिन्होंने काम किया है एज जर्नलिस्ट बैक देन, उसी टाइम पीरियड में. तो मैंने पूछा उनसे उस टाइम पे क्या दुनिया थी, कैसे काम करते थे, कैसे ऑफिसेस चलते थे, क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी. मैं भी एक टेलीविजन चैनल में बिफोर बीइंग एन एक्टर काम कर चुकी हूँ, तो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ एजेंडास कैसे बनते हैं, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कैसे क्या होता है. मैंने भी देखा है वो. मतलब मैं एक एंटरटेनमेंट चैनल में काम करती थी, लेकिन हमारे साथ ही जुड़ा हुआ था उसका न्यूज विंग. तो मैं जाती थी वहां पे और देखती थी एंकर्स कैसे निकलते हैं, क्या करते हैं. वो 2007-8 की बात है जब मैं जॉब करती थी. पर आई हैव सीन ऑल दैट कि कैसे कितना आर्टिफिशियल होता है या कितना फटाफट होता है. एंड यू फील लाइक अरे हम तो बैठ के देखते हैं और सोचते हैं व्हाट दे आर सेइंग इज एवरीथिंग और ये सच बोल रहे हैं, पर यहाँ तो मतलब अब ये करो, अब वो करो, अब ऐसे करो, वैसे करो. आई हैव सीन इट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. तो बस वही सारी चीजें आपको हेल्प करती है. और लाइक आई सेड ये एक सच्ची घटना है, तो बहुत जरूरी था कि मैं जो रिसर्च किए है और जो इंसिडेंट है मैं उसके साथ ही जुड़ी रहूं. तो मेरा अटेम्प्ट वही था. एंड ऑल्सो आई टेल यू, मेरा कैरेक्टर थोड़ा ग्रे शेड्स, नेगेटिव, वट एवर यू मे वांट टू कॉल इट. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज एन एक्टर कि आप जज ना करें. तो मैंने वो एक ब्लैंक स्लेट से मैं उतरी थी इस फिल्म में कि मैं अपने कैरेक्टर को जज ना करूं ताकि मैं फुल जस्टिस दे पाऊं. अगर मैं जज करती तो शायद मैं सोचती नहीं ये तो बहुत अच्छी है. ना मैं वो करना चाहती थी, ना मैं सोचती ओ गॉड कैसी लड़की है. नो, शी इज डूइंग हर जॉब. तो मैंने उसको वैसे ही दर्शाया जानबूझ के ताकि ऑडियंस बोले ये बुरी है या ऑडियंस बोले ये अच्छी है. मैं कुछ नहीं दिखाना चाहती थी वैसा.